شہر بغداد میں ایک خوبصورت محلے میں نور الدین نامی ایک معمولی تاجر رہتا تھا۔ اپنی پیاری اور ہنرمند بیوی سعدیہ کے انتقال کے بعد نور الدین اپنی بوڑھی ماں اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا بیٹا فیصل 10 سال کا تھا، جبکہ اس کی بیٹی عائشہ 8 سال کی تھی۔ نور الدین بہت محنتی تھا اور اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف تھا۔ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، نماز فجر ادا کرتا اور پھر بازار جاتا تھا جہاں اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ایک دن جب نور ہوا تھی، الدین اپنی دکان میں کام کر رہا تھا۔ ایک بزرگ آدمی اس کی دکان پر آیا۔ اس کی سفید داڑھی اور نورانی چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے سلام کیا اور نور الدین سے کچھ کپڑے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آداب میرے بیٹے، بزرگ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے کاروبار میں بہت ایماندار ہو۔ نور الدین نے احترام سے جواب دیا، شکریہ بابا جی، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا کاروبار اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ بزرگ مسکرایا، میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ایسا کپڑا چاہیے جو میرے قد کے مطابق ہو، لیکن میرے پاس بہت کم پیسے ہیں۔ نور الدین نے فوراً اپنی دکان کے سب سے اچھے کپڑے نکالے اور کہا، یہ آپ کے لیے بالکل مناسب ہوگا بابا جی، اور آپ جتنے پیسے دے سکتے ہیں وہی کافی ہوگا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، تم نے قیمت کم کیوں کر دی؟ تم تو نقصان میں جاؤ گے۔ نور الدین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے والد مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں بس اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کا احترام کرنا میرا فرض ہے۔ یہ سن کر بزرگ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں بہت خوش ہوں بیٹے، میں واقعی میں ایک غریب آدمی نہیں بلکہ تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ تمہارا دل صاف ہے اور تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ بزرگ نے اپنے جیب سے ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا جو سبز رنگ کا تھا اور اس پر سنہری حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا، یہ تعویذ میں تمہیں دیتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھو۔ جب تم مشکل میں ہو تو اسے اپنے ہاتھ میں لو اور سورہ فاتحہ پڑھو، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ نور الدین نے ادب سے تعویذ لیا اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ بزرگ نے اسے دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس شام نور الدین جب گھر ہوا، لوٹا تو اس نے اپنی ماں کو بزرگ کے بارے میں بتایا۔ بیٹے، تم بہت خوش نصیب ہو، ماں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بزرگ ولی اللہ تھے، اس تعویذ کو سنبھال کر رکھو۔ نور الدین نے تعویذ کو اپنے سینے سے لگایا اور سونے سے پہلے اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ کچھ ہفتوں بعد نور الدین کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں دمشق جانا پڑا۔ یہ ایک لمبا سفر تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا اور اپنے دوست احمد کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر شروع ہوا تو نور الدین نے محسوس کیا کہ وہ بزرگ کی دی ہوئی تعویذ ساتھ لانا بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ قافلہ صحرا میں آگے بڑھتا رہا۔ 4 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک شام جب وہ لوگ پڑاؤ ڈال رہے تھے تو اچانک ایک تیز آندھی آ گئی۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ قافلے کے تمام خیمے اڑ گئے اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ نور الدین اپنے اونٹ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اسے ایک تیز چمک ہوئی، نظر آئی۔ وہ اس چمک کی طرف متوجہ ہوا اور اسے حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ وہی سبز تعویذ اس کی جیب میں تھا جو اس نے گھر میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ تعویذ اب ہے اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ نور الدین نے حیرت سے تعویذ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے سورہ فاتحہ مکمل کی، تعویذ کی روشنی اور تیز ہو گئی اور آندھی فوراً تھم گئی۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ قافلے کے سب لوگ ٹھیک تھے اور ان کا سامان بھی محفوظ تھا۔ سب لوگ اس معجزے پر حیران تھے کہ آندھی اتنی اچانک کیسے رک گئی۔ نور الدین نے اپنے دوست احمد کو تعویذ کے بارے میں بتایا۔ اللہ کی قدرت ہے دوست، احمد نے کہا، تمہیں ایک ہے کہ آندھی اتنی اچانک کیسے رک گئی۔ نور الدین نے اپنے دوست احمد کو تعویذ کے بارے میں بتایا۔ اللہ کی قدرت ہے دوست، احمد نے کہا، تمہیں ایک ہے کہ آندھی اتنی اچانک کیسے رک گئی۔ نور الدین نے اپنے دوست احمد کو تعویذ کے بارے میں بتایا۔ اللہ کی قدرت ہے دوست، احمد نے کہا، تمہیں ایک ہے کہ آندھی اتنی اچانک کیسے رک گئی۔
नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताया। अल्लाह की कुदरत है दोस्त, अहमद ने कहा। तुम्हें एक है कि आंधी इतनी अचानक कैसे रख गई। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद को तावीज़ के बारे में बताए। औलिया अल्लाह की दुआ मिली है। अगले दिन काफिला दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़ा। नूरुद्दीन अब तावीज़ को संभाल कर अपने सीने से लगा कर रखता था। उसके दिल में अल्लाह है का शुक्र अदा करने का जज्बा था कि उसने उसे ऐसी नामत से नवाजा। मज़ीद सफ़र करते हुए काफिला एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां आगे का रास्ता दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक रास्ता दिमश्क की तरफ जाता था, जबकि दूसरा रास्ता एक नामालूम समत में जाता था। काफिले के रहनुमा ने कहा, हम दिमश्क के रास्ते पर जाएंगे। दूसरा रास्ता है तलस्म शहर की तरफ जाता है। कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। नूरुद्दीन को हैरत हुई। तलस्म शहर, ये क्या है? काफिले का बुजुर्ग रहनुमा बोला, ये है कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। एक ऐसा शहर है जहां लोग अल्लाह को भूल गए हैं। वहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता है जिसका एक जादूगर वजीर है। वहां के लोग जादू के ज़ेर असर हैं और उन्हें है हकीकत का पता नहीं है। ये सुनकर नूरुद्दीन को अपने सीने से लगे तावीज़ से हरारत महसूस हुई। उसे लगा जैसे तावीज़ इससे कुछ कहना चाहता है। इस रात ख्वाब में नूरुद्दीन ने देखा कि वही बुजुर्ग उसके पास आए हैं। बैठे नूरुद्दीन, तुम्हें तिलस्म शहर जाना है। वहां तुम्हारा एक मकसद है। तुम वहां के लोगों को अल्लाह की राह पर वापस लाने में मदद करोगे। तावीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा। सवीरे उठकर नूरुद्दीन ने अपना ख्वाब काफिले के अमीर को बताया। अमीर ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह खतरनाक है, लेकिन नूरुद्दीन का अज़्म पख्ता था। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, उसने कहा। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं उससे मना नहीं मोड़ूंगा। अमीर ने आखिर में उसे एक ऊंट, 3 दिन का खाना और एक पानी की मुश्क दी। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, अमीर ने कहा। नूरुद्दीन ने अपने दोस्त अहमद से वादा कराया कि अगर वो 1 माह तक वापस ना आए तो अहमद उसके खानदान की देखभाल करेगा। मेरे बच्चों से कहना कि मैं जल्द वापस आऊंगा, नूरुद्दीन ने कहा, और मेरी माँ को मेरी तरफ से सलाम कहना। अहमद ने उसे गले लगाया और कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे दोस्त। इसी तरह नूरुद्दीन अपने काफिले से अलग हो गया और तलस्म शहर की समत अपना सफ़र शुरू किया। हिस्सा दोम। तलस्म शहर का राज नूरुद्दीन 3 दिन तक सफ़र करता रहा। रास्ता मुश्किल था। अक्सर पानी के चश्मे दौड़ थे और आसपास का इलाका वीरान था, लेकिन तावीज़ इसकी रहनुमाई करता रहा। इसकी रोशनी कभी कभी तेज होती जब वो हो जाता है सही रास्ते पर होता और मध्यम पड़ जाती जब वो गलत रास्ते पर जाता। चौथे दिन की सुबह नूरुद्दीन ने दौर एक शहर की दीवार देखी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, इसे शहर की खूबसूरती देखकर हैरत हुई। शहर की दीवारें सफ़ीद संगमरमर से बनी थीं और शहर के दरवाजे पर सोने की जाली लगी थी। दौर से शहर के महल के गंबद है चमकते हुए नजर आ रहे थे।
लेकिन शहर के करीब पहुंचते ही नूरुद्दीन ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब था। शहर में कोई आवाज नहीं थी, कोई शोर नहीं, कोई बच्चों की हंसी नहीं, कोई दुकानदारों की पुकार नहीं। सब कुछ खामोश था, जैसे शहर सो रहा हो। शहर के दरवाजे पर पहुंचकर नूरुद्दीन ने देखा कि दरवाजे पर कोई पहरेदार है। नहीं था, दरवाजा खुला था और नूरुद्दीन बासानी अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही इसे एक और हैरत का सामना करना पड़ा। शहर में लोग थे, लेकिन वो सब एक अजीब सी हालत में थे। वो चल फिर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, उनके चेहरों पर कोई तासर नहीं था, जैसे वो सब जिंदा हूं नहीं बल्कि कठपुतलियां हूं। नूरुद्दीन ने एक दुकानदार से बात करने की कोशिश की। अस्सलाम अलैकुम भाई, इसने कहा। दुकानदार ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आदाब, उसने बेरोश अंदाज में कहा। आपको क्या चाहिए? मैं मुसाफिर हूं, नूरुद्दीन ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा शहर है? ये मालिक शहर है, दुकानदार ने जवाब दिया। हमारा शहंशाह मालिक हमारी देखभाल करता है। और तुम अल्लाह की इबादत करते हो? नूरुद्दीन ने पूछा। दुकानदार की आंखों में खौफ आ गया। यहां उस नाम का जिक्र मत करो, इसने धीमी आवाज में कहा। यहां सिर्फ मालिक की इबादत होती है। और उसके वजीर खाकान की नूरुद्दीन ने महसूस किया कि इस शहर में कुछ बहुत गलत था। लोग अल्लाह को भूल चुके थे और किसी इंसान की पूजा करते थे। इसने शहर में घूमना शुरू किया। सब जगह वही हाल था। लोग रोबोट की तरह काम कर रहे थे, बच्चे बगैर हंसी खेल रहे थे, बूढ़े खामोशी से बैठे थे। कहीं कोई खुशी नहीं थी, कहीं कोई गम नहीं था, सब कुछ बेरूह था। शाम होने लगी तो नूरुद्दीन एक सराय में ठहरा। सराय का मालिक भी वही बेरूह अंदाज में बात करता था। नूरुद्दीन ने उससे कुछ सवाल करने की कोशिश की। यहाँ है शहंशाह मालिक के बारे में कुछ बताएं, उसने पूछा। सराय वाले ने कहा, शहंशाह मालिक हमारा खुदा है, वो हमें खाना देता है, वो हमें जिंदगी देता है, उसका वजीर है, खाकान हमें शहंशाह के अहकामात बताता है। और तुम लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते? नूरुद्दीन ने पूछा। सराय वाले की आंखों में फिर खौफ आया। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, सिर्फ मालिक का महल है जहाँ हम रोजाना इसकी इबादत करने जाते हैं। नूरुद्दीन समझ गया कि यहाँ के लोगों को किसी ने जादू से अपना गुलाम बना रखा है। इसे याद आया कि काफिले के बुजुर्ग ने कहा था कि यहाँ एक जादूगर है जो लोगों को अपने जादू से कंट्रोल करता है। रात को अपने कमरे में नूरुद्दीन ने तावीज को हाथ में लिया और सूरा फातिहा पढ़ी। तावीज से एक तेज रोशनी निकली और उसके सामने वही बुजुर्ग जाहिर हुए जिन्होंने उसे तावीज दिया था। बेटे नूरुद्दीन, बुजुर्ग ने कहा, तुम तुलसम हो, शहर पहुंच गए हो। यहाँ के लोग खाकान नामी जादूगर के जादू में हैं, जो कि अपने आप को शहंशाह मालिक का वजीर कहता है। इसने लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ निकाल दिया है और उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। मैं क्या करूं बाबा जी? नूरुद्दीन ने पूछा। तुम्हें 3 काम करने हैं, बुजुर्ग ने कहा। पहला, तुम्हें शहर के मरकज में एक पुरानी मस्जिद मिलेगी जो बर्बाद हालत में है, उसे साफ करो और वहां अजान दो। दूसरा, शहर में एक पानी का चश्मा है जिसमें खाकान ने जहर मिला रखा है, इसमें सौरा यस पढ़कर फौंको। तीसरा, तुम्हें खाकान के जादू की किताब को तलाश करना है और उसे तबाह करना है। मैं अकेला ये सब कैसे करूंगा? नूरुद्दीन ने पूछा। तुम अकेले नहीं हो, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह तुम्हारे साथ है और उस शहर में एक लड़की है जिस पर खाकान का जादू नहीं चला, उसका नाम ज़ुबैदा है, वो तुम्हारी मदद करेगी। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए और नूरुद्दीन नींद से जाग गया। अगली सुबह नूरुद्दीन ने शहर में घूमना शुरू किया। इसने पहले मरकज शहर की तलाश की जहां वो हो गए। पुरानी मस्जिद होनी चाहिए थी। घूमते घूमते उसे एक छोटी सी गली मिली जहां एक पुरानी इमारत खंडर की हालत में खड़ी थी। इस पर एक टूटा हुआ मीनार था और नूरुद्दीन समझ गया कि यही वो मस्जिद है जिसके बारे में बुजुर्ग ने कहा था। नूरुद्दीन मस्जिद के अंदर गया तो देखा कि वहां चारों तरफ ढोल और मकड़ियों के जाले थे। मेहराब टूटा हुआ था, मनबर गिर चुका था और फर्श पर मिलबा बिखरा हुआ था।
नूरुद्दीन ने फौरन मस्जिद की सफाई शुरू कर दी। उसने पहले फर्श को साफ किया, फिर दीवारों से मकड़ियों के जाले हटाए और आखिर में मिहराब और मंबर की मरम्मत की। वो पूरा दिन काम करता रहा और शाम तक मस्जिद काफी हद तक साफ हो गई थी। अब वो अजान देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे डर था कि शहंशाह मालिक या खाकान के आदमी उसे पकड़ लेंगे। जब वो सोच रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नूरुद्दीन ने मुड़कर देखा तो एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में वो बेरूही नहीं थी जो बाकी शहर के लोगों में थी। नूरुद्दीन समझ गया कि यही ज़बैदा है जिसके बारे में बुजुर्ग ने कहा था। मेरा नाम नूरुद्दीन है, इसने कहा। मैं उस शहर के लोगों को जादू से आज़ाद कराने आया हूँ। ज़बैदा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तो फिर तुम वही हो जिसके बारे में मेरी दादी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि एक दिन कोई आएगा जो इस शहर को आज़ाद कराएगा। मेरी दादी इस शहर की वाहिद औरत थीं जो खाकान के जादू से मुतासिर नहीं हुए थीं। वो मुझे बचपन से ही हकीकी खुदा अल्लाह के बारे में बताती थीं। वो 1 साल पहले फौत हो गईं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मैं उस मस्जिद की देखभाल करूं और मुंतज़र रहूं। नूरुद्दीन ने उसे बुजुर्ग के बारे में बताया और वो काम जो उसे करने थे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ज़बैदा ने कहा, लेकिन अजान देना खतरनाक है। खाकान के सिपाही हर जगह हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा करना होगा। नूरुद्दीन ने कहा, मैं कल सुबह अजान दूंगा। ज़बैदा ने नूरुद्दीन को अपने घर ले गई, जो शहर के एक दूरदराज कोने में था। वहां नूरुद्दीन ने देखा कि ज़बैदा के घर में एक छोटा सा मुसल्ली बना हुआ था, जहां वो चुपके से नमाज पढ़ती थी। अगले दिन सुबह सवेरे नूरुद्दीन और ज़बैदा वापस मस्जिद पहुंचे। नूरुद्दीन ने अपने तावीज़ को सीने से लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और मीनार पर चढ़ गया। फिर उसने जोर से अजान देना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबास की आवाज़ पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकले और हैरत से मस्जिद की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों की आंखों में ताज्जुब था, जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा हो। अजान खत्म होते ही नूरुद्दीन ने देखा कि महल की तरफ से कुछ सिपाही दौड़ते हुए आ रहे थे। जल्दी करो, ज़बैदा ने कहा, हमें यहाँ से हटना है, निकलना होगा। नूरुद्दीन मीनार से नीचे उतरा और दोनों मस्जिद के पिछले दरवाजे से निकल गए। वो गलियों में दौड़ते रहे जब तक कि सिपाहियों की आवाजें दूर नहीं हो गईं। अब हमें चश्मे के पास जाना होगा, नूरुद्दीन ने कहा। ज़बैदा ने उसे शहर के एक बाग में ले जाया जहां एक बड़ा चश्मा था। चश्मा का पानी जुमुर्द की तरह हरा था, लेकिन उसने कहा कि उसका रंग कुछ और है। मैं कोई अजीब सी बो थी। यही वो चश्मा है जिसमें खाकान ने जहर मिलाया है, ज़बैदा ने बताया। हर हफ्ते लोगों को इस चश्मे का पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वो खाकान के जादू के जेर असर रहते हैं। नूरुद्दीन ने तावीज़ को हाथ में लिया और चश्मे के किनारे बैठ गया। इसने सूरा यस पढ़ना शुरू किया और हर आयत के बाद हाथ उठाकर दुआ करता रहा। पानी पर फौनकता रहा। जैसे जैसे वो पढ़ता रहा, चश्मे का पानी अपना रंग बदलने लगा। हरा रंग कम होता गया और आखिर में पानी साफ और शफाफ हो गया। पानी से अब एक हो गया। मातर खुशबू आ रही थी। देखो, पानी साफ हो गया है, ज़बैदा खुशी से चलाई। वो दोनों खुशी से चश्मे के पानी को देख ही रहे थे कि अचानक चारों तरफ से सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। तुम दोनों गिरफ्तार हो, एक सिपाही ने कहा। तुमने शहंशाह मालिक के खिलाफ बगावत की है। नूरुद्दीन और ज़बैदा को पकड़ लिया गया और उन्हें महल की तरफ ले जाया गया। नूरुद्दीन ने तावीज़ को अपनी मिट्टी में मजबूती से पकड़ रखा। उसके सिर पर एक बड़ा ताज था और वो कीमती लिबास पहने हुए था। इसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे शहर के दूसरे लोगों की। इसके बगल में एक लंबा पतला आदमी खड़ा था जिसने सियाह लिबास पहन रखा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें सरख थीं। नूरुद्दीन समझ गया कि ये खाकान है, वो जादूगर जिसने पूरे शहर को अपने जादू में कर रखा है। ये कौन है? वजीर हैं। खाकान? मोटे आदमी ने पूछा, जो शहंशाह मालिक होना चाहिए था। कुर्बान, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज सुबह मस्जिद से अजान दी थी, खाकान ने कहा, और उन्होंने हमारे मुकद्दस चश्मे को भी आलूदा कर दिया है।
शहनशाह मालिक की आंखों में गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा मसनूई लगता था, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। तुम लोगों को मौत की सजा दी जाएगी, शहनशाह ने कहा। नूरुद्दीन आगे बढ़ा और बोला, ऐ शहनशाह, आप खुद भी जादू में हैं, ये खाकान आपको भी कंट्रोल कर रहा है। खाकान के चेहरे पर खौफ की लकीरें नमूदार हुए। खामोश रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, अल्लाह, नूरुद्दीन ने जोर से कहा, वही जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, वही जो हमें ज़िंदगी देता है, वही जिसकी इबादत आपके आबाओ इजदाद करते थे। खाकान गुस्से से चीखा, सिपाहियों, उसे पकड़ो। सिपाही नूरुद्दीन की तरफ बढ़े, लेकिन उसने अपने तावीज़ को निकाला और सूरा फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। तावीज़ से तेज़ रोशनी निकली और सिपाही रोशनी से डरकर पीछे हट गए। ये क्या जादू है? खाकान ने गुस्से से पूछा। जादू नहीं, ये अल्लाह की ताकत है, नूर अल-दीन ने जवाब दिया। खाकान ने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और इसमें से कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो पढ़ रहा था, कमरे में हवा तेज होने लगी और चारों तरफ काले बादल घूमने लगे। नूर अल-दीन समझ गया कि यही खाकान की जादू की किताब है, जिसे इसे तबाह करना था। इसने जुबैदा को देखा, जो खौफ से कांप रही थी। जुबैदा, हिम्मत रखो, इसने कहा। तुमने अपनी दादी की बात मानी और सच्चाई पर कायम रही। अब हमें अपने ईमान के साथ इस जादूगर का मुकाबला करना है। जुबैदा ने सर हिलाया और अपने आप को संभाला। खाकान ने अपना जादू खत्म किया तो कमरे में 3 बड़े बड़े जानवर जाहिर हुए। वो शेर जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उनके दांत तलवारों की तरह तेज थे। अपने आप को बचाओ, अगर बचा सकते हो, खाकान हंसकर बोला। नूर अल-दीन ने तावीज़ को हाथ में लिया और आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, तावीज़ की रोशनी और तेज होती गई और वो 3 जानवर धुआं बनकर गायब हो गए। खाकान खौफजदा हो गया। इसने अपनी किताब से दोबारा कुछ पढ़ना शुरू किया, इस बार और जोर से। कमरे में ज़मीन हिलने लगी और दीवारों से पानी बहने लगा। नूर अल-दीन ने अपना तावीज़ मजबूती से पकड़ा और जुबैदा का हाथ थाम लिया। सूरा इखलास पढ़ो, इसने जुबैदा से कहा। जैसे ही वो पढ़ते रहे, ज़मीन का हिलना कम होता गया और पानी बहना बंद हो गया। खाकान अब बहुत गुस्से में था। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, वो चीखा और इसने अपनी किताब से एक और मंत्र पढ़ा। इस बार कमरे में से एक सियाह साया निकला जो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी सांप की शक्ल इख्तियार करने लगा। सांप नूर अल-दीन और जुबैदा को घेरने लगा। नूर अल-दीन ने तावीज़ को अपनी पेशानी से लगाया और सूरा फलक और सूरा नास पढ़ना शुरू किया। जुबैदा भी इसके साथ पढ़ने लगी। तावीज़ से अब एक तेज सफ़ेद रोशनी निकल रही थी जो पूरे कमरे में फैल गई। सियाह सांप रोशनी में पिघलने लगा और कुछ ही देर में वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। थी, ये मुमकिन नहीं, वो चीखा। मेरा जादू शिकस्त नहीं खा सकता। नूर अल-दीन ने तावीज़ को अपने सर पर उठाया और ज़ोर से कहा, अल्लाह अकबर। तावीज़ से एक तेज़ चमक निकली और वो खाकान की किताब की तरफ जाकर टकराई। किताब खाकान के हाथ से गिर गई और ज़मीन पर आकर जल गई। नहीं, खौगों ने चीखा। जैसे ही किताब जल कर राख हो गई, कमरे में एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। शहनशाह मालिक की आंखों में अचानक जिंदगी आ गई और वो हैरत से चारों तरफ देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? इसने पूछा। खाकान को समझ आ गया कि इसका जादू टूट गया है। वो तख्त से दूर भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया। उनकी आंखों में भी अब जिंदगी थी और वो समझ गए थे कि खाकान ने उनके साथ किया था। इसे पकड़ो, शहनशाह मालिक ने हुक्म दिया। ये जादूगर कई सालों से हम सबको अपने जादू में रख कर जुल्म कर रहा था। खाकान को फौरन कैद कर लिया गया और शहनशाह मालिक ने नूर अल-दीन और जुबैदा की तरफ देखा। तुम लोगों ने हमें आज़ाद कराया है, इसने कहा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरा असल नाम सलीम है और मैं इस शहर का हाकिम हूँ। 30 साल पहले खाकान यहाँ आया था और इसने अपने जादू से मुझे और मेरे शहर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। नूर अल-दीन ने सलीम को तावीज़ और बुजुर्ग के बारे में बताया। हमें जल्द अज जल्द मस्जिद की तामीर दोबारा शुरू करनी चाहिए, सलीम ने कहा। हमें अल्लाह की इबादत दोबारा शुरू करनी है। जुबैदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी दादी का ख्वाब पूरा हो गया, इसने कहा। उन्होंने हमेशा कहा था कि एक दिन ये शहर दोबारा आज़ाद होगा। इसी वक्त महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। वो सब बाहर गए तो देखा कि पूरे शहर के लोग महल के सामने जमा हो गए थे। जैसे ही उन्होंने सलीम और नूर अल-दीन को देखा, वो खुशी से चीखने लगे। हम आज़ाद हैं, लोग चीख रहे थे।
हम जादू से आज़ाद हैं। सलीम ने लोगों को खामोश कराया और कहा, आज हम एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम दोबारा अल्लाह की इबादत करेंगे और हमारा शहर फिर से खुशहाल होगा। नूर अल-दीन ने तावीज़ को अपने सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने इसे इस नेक काम के लिए चुना। अगले कुछ दिनों में तिलिस्म शहर में बहुत तब्दीलियां आए। सलीम, जो अब अपने असल नाम से जाना जाता था, ने मस्जिद की तामीर के लिए सबसे माहिर कारीगरों को मुकर्रर किया। शहर के लोग खुशी से अपने घरों को दोबारा सजाने लगे, गलियों को साफ करने लगे और एक दूसरे से मोहब्बत से मिलने लगे। नूर अल-दीन को शहर का काजी मुकर्रर किया गया और इसने लोगों को दोबारा इस्लाम की तालीम देना शुरू किया। जुबैदा ने शहर की औरतों और बच्चों के लिए एक मदरसा शुरू किया, जहां वो उन्हें कुरान पाक और इस्लामी तालीमात सिखाती थी। खाकान को कैद कर लिया गया और इसके जादू की तमाम चीज़ें तबाह कर दी गईं। वो अब एक आम इंसान था और इसके जादू की ताकत ख़त्म हो गई थी। एक माह गुजर गया और शहर में ज़िंदगी दोबारा बहाल हो गई थी। लोग खुशी से रहने लगे थे, बच्चे गलियों में खेलते थे और बाज़ारों में रौनक थी। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई थी और अब रोज़ाना अज़ान की आवाज़ पूरे शहर में गूंजती थी। एक दिन नूर अल-दीन अपने कमरे में बैठा तावीज़ को देख रहा था जब इसे वही बुजुर्ग ख्वाब में नजर आए। बेटे नूर अल-दीन, तुमने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है, बुजुर्ग ने कहा। तिलिस्म शहर आज़ाद हो गया है और लोग दोबारा अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा जी, नूर अल-दीन ने कहा। यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। नहीं बेटे, ये सब अल्लाह की मदद से हुआ, बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा। अब तुम्हारे बच्चे और माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें वापस जाना होगा। नूर अल-दीन के चेहरे पर उदासी आ गई। लेकिन मैं जुबैदा के बारे में क्या करूं? मैं इसे यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कराए। अल्लाह ने हर मुश्किल का हल पहले से कर रखा है। तुम जुबैदा से शादी कर लो और फिर इसे अपने साथ ले जाओ। वो तुम्हारे ख़ानदान में एक नई रोशनी लेकर आएगी। नूर अल-दीन खुश हो गया। अब ठीक कहते हैं बाबा जी, मैं सलीम से बात करूंगा। बुजुर्ग गायब हो गए और नूर अल-दीन नींद से जाग गया। अगले दिन नूर अल-दीन ने सलीम से मुलाकात की और अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो जुबैदा से शादी करना चाहता है और इसे अपने साथ बगदाद ले जाना चाहता है। सलीम ने नूर अल-दीन को गले लगाया। तुम मेरे लिए एक बेटे की तरह हो नूर अल-दीन, इसने कहा। मैं तुम्हारी शादी जुबैदा से कराने में खुशी महसूस करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना होगा। मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सलीम भाई, नूर अल-दीन ने कहा। लेकिन मेरे बच्चे और मेरी माँ मेरा बगदाद में इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं जुबैदा से पूछूंगा कि आया वो मेरे साथ आना चाहती है या नहीं। सलीम समझ गया और नूर अल-दीन को जुबैदा से बात करने की इजाज़त दी। नूर अल-दीन ने जुबैदा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और जुबैदा ने खुशी से कबूल कर लिया। मैं तुम्हारे साथ बगदाद आऊँगी, जुबैदा ने कहा। मेरी दादी ने हमेशा कहा था कि बगदाद एक खूबसूरत शहर है। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनकर उनकी परवरिश करूंगी और हम मिलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। एक हफ्ते बाद नूर अल-दीन और जुबैदा की शादी पूरी धूमधाम से हुई। पूरा शहर जश्न में डूब गया। सलीम ने नूर अल-दीन को बहुत सारे तोहफे दिए और कहा कि वो हर साल तिलिस्म शहर की तरफ से बगदाद को तोहफ़े भेजेगा। शादी के बाद नूर अल-दीन और जुबैदा ने तिलिस्म शहर से रुखसत ली। सलीम ने उन्हें एक बड़ा काफिला दिया जिसमें बहुत सारे ऊंट, सिपाही और कीमती सामान था। ऊंट, सिपाही और कीमती सामान था। जब वो शहर के दरवाजे से निकल रहे थे, नूर अल-दीन ने देखा कि शहर की दीवारों पर लिखा हुआ नाम अब बदल गया था। तिलिस्म शहर की जगह अब नूर शहर लिखा हुआ था। ये नाम तुम पर रखा गया है, सलीम ने कहा। तुमने इस शहर में नूर लाया, इसलिए अब इसका नाम नूर शहर है। नूर अल-दीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो और जुबैदा अपने काफिले के साथ बगदाद की तरफ चल पड़े। सफ़र आसान रहा और कोई मुश्किल पेश नहीं आई। एक माह बाद वो बगदाद पहुंच गए। नूर अल-दीन के दोस्त अहमद ने इसका वादा निभाया था और नूर अल-दीन के बच्चों और माँ की अच्छी तरह देखभाल की थी। जब नूर अल-दीन अपने घर पहुंचा तो इसके बच्चे खुशी से चीखते हुए इसकी तरफ दौड़े। अब वापस आ गए। फैसल और आयशा खुशी से चलाए। नूर अल-दीन ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें जुबैदा से मिलवाया। बच्चों, ये जुबैदा हैं, तुम्हारी नई माँ, इसने कहा। आयशा ने फौरन जुबैदा को गले लगा लिया, लेकिन फैसल थोड़ा शर्मा गया। डरो मत बेटे, जुबैदा ने मुस्करा कर कहा। मैं तुम्हारी असल माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त और साथी बन सकती हूँ।
फैसल भी मुस्करा दिया और जुबैदा के करीब आ गया। नूर अल दीन की माँ ने जुबैदा को देखा और इसे अपने गले लगा लिया। तुम खुश आमदीद हो बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में नेकी और पाकीज़गी है। इस शाम नूर अल दीन ने अपने ख़ानदान और दोस्तों को तिलिस्म शहर की कहानी सुनाई कि कैसे एक शहर जादू के ज़ेर असर था और कैसे अल्लाह की मदद से वो आज़ाद हुआ। सब लोग कहानी सुनकर हैरान थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने नूर अल दीन को सलामत वापस भेज दिया। नूर अल दीन ने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया और जुबैदा ने बगदाद में भी एक मदरसा शुरू किया जहां वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। फैसल और आयशा जुबैदा से बहुत मोहब्बत करने लगे और वो उन्हें अपनी असल माँ की तरह समझने लगे। नूर अल दीन की माँ भी जुबैदा को बहुत चाहने लगे और उन्होंने इसे बहुत सारी दुआएं दी। 1 साल बाद जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। खानदान में खुशियाँ छा गईं और नूर अल दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने इसे इतनी नेमतों से नवाजा। हर साल नूर शहर से एक काफिला आता जो सलीम की तरफ से तहाइफ लाता और नूर अल दीन भी हर साल नूर शहर के लिए तहाइफ भेजता। वक्त गुजरता गया, फैसल और आयशा बड़े हो गए और अब्दुल्ला भी बड़ा होने लगा। नूर अल दीन की दुकान अब बगदाद की सबसे बड़ी दुकानों में से एक थी और जुबैदा का मदरसा भी बहुत मशहूर हो गया था। एक दिन जब नूर अल दीन अपनी दुकान में बैठा था, एक बुजुर्ग आदमी आया। नूर अल दीन ने फौरन पहचान लिया कि ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने इसे वो सब्ज़ तावीज़ दिया था। आदाब बाबा जी, नूर अल दीन ने अदब से खड़े होकर कहा। बुजुर्ग मुस्कराए। आदाब बेटे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे खुशी है कि तुम और तुम्हारा ख़ानदान खुश हो। ये सब आपकी दुआओं की वजह से है, नूर अल दीन ने कहा। नहीं बेटे, ये सब तुम्हारे ईमान और नेक नीति की वजह से है, बुजुर्ग ने कहा। अल्लाह नेक लोगों की मदद करता है। नूर अल दीन ने बुजुर्ग को गले लगा लिया और कहा, मेरे पास वो तावीज़ अभी भी है। मैं इसे अपने सबसे कीमती ख़जाने की तरह संभाल कर रखता हूँ। बुजुर्ग हंसे। अब तुम्हें इस तावीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटे, तुम खुद एक तावीज़ बन गए हो जो अपने आसपास के लोगों के लिए बरकत का बाइस है। बुजुर्ग ने नूर अल दीन के सर पर हाथ रखा और इसे दुआ दी, फिर वो दुकान से बाहर निकल गए। नूर अल दीन उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचा तो बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आए। इस दिन के बाद नूर अल दीन ने अपना बाकी उम्र अपने ख़ानदान के साथ खुशी से गुजारा। इसने कभी भी ये नहीं भूला कि अल्लाह की मदद से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है और हमेशा लोगों की मदद करता रहा। नूर अल दीन, जुबैदा और उनके बच्चों के बारे में कहानियाँ आज भी बगदाद में सुनाई जाती हैं और लोग उन्हें अल्लाह के नेक बुंदों की मिसाल के तौर पर याद करते हैं। हिस्सा पंजुम, इखलाकी सबक। तिलिस्म शहर की कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। पहला सबक यह है कि ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। नूर अल दीन ने अपने मजबूत ईमान की वजह से जादूगर खाकान को शिकस्त दी। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और इसकी इबादत करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। दूसरा सबक यह है कि हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। जुबैदा ने अपनी दादी की बात मानी और खाकान के जादू के खिलाफ खड़ी रही, इसलिए वो आखिर में कामयाब हुई। तीसरा सबक यह है कि हमें अपने ख़ानदान से मोहब्बत करनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। नूर अल दीन हमेशा अपने बच्चों और माँ के बारे में फ़िक्रमंद रहता था और जब जुबैदा इसके ख़ानदान में शामिल हुई तो इसने इसे भी अपनी मोहब्बत दी। चौथा सबक यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो मुश्किल में हो। नूर अल दीन ने तिलिस्म शहर के लोगों की मदद की और बदले में अल्लाह ने इसे बहुत सारी नेमतों से नवाजा। पांचवां सबक यह है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे तिलिस्म शहर के लोग जादू के ज़ेर असर थे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं और अल्लाह की तरफ आने में उनकी मदद करें।